Chaitanya sir, you can start now. Yes, ma'am. सर तुम्ही सुरू करू शकता. तुमचं Yes, पीपीटी yes, वगैरे दिसतंय का चेक करा मुलांसोबत प्रेझेंटेशन. yes, yes, ma'am. Good evening, all of you. In that last session, we were taking information about sixth chapter of history subject. You can tell me in chat box how can we take lecture means English and Hindi or English and Marathi. Also, you can ask doubt also and you can give answer also of questions. Which questions I will ask based on that particular topic. So students, before starting the lesson, remaining part of lesson, I'm going to ask a few some questions based on this thing, based on this topic. Who can give the answer? Please write your answer in chat box section. I will check over there. So we already took information about this lesson, half part of this lesson, beginning of freedom movement. And in this lesson, we learned that work of different leaders. Also, we learned about that Indian National Congress, which was means very important organization started in our India. So my first question is that this particular session, first session, you can type your answer in chat box. Also, you have to give answer that who started that newspaper, Kesari and Maratha. Because of that newspaper, they could means show their problem. They could like criticize the government or criticism on government. So that also you have to write answer. So I will check in chat box. Also, you have to tell me how from English and Hindi or English and Marathi. Yes, Marathi and English. English and Hindi. Okay, some students are telling Marathi, some students are telling Hindi. It's okay. I will tell in both also, no problem. So answer of questions anyone gave? Vimal Chandra Banerjee. Okay, he was the president. How many delegates were there? How many representatives? How many members were present there for this session? Also another question, Kesari and Maratha newspaper. Who started this newspaper? Okay. So I will check answer in between. Students, we took information about this particular organization, Indian National Congress. Afterwards, this organization became that one political party. Now this political party is, it is National Party, Indian National Congress. We learned here two phases in this particular party. Now today we have to learn. Today we want to take information. We are going to take information about that remaining point. After that phases, extremist and moderate.
remaining points that I will explain you first shortly, and then I will start my remaining lesson. So first is that partition of Bengal. That point we have to learn here. That point information we have to take here. Then after that, we have to take information anti-partition movement. Then 4-point program of Indian National Congress. Differences between moderates and extremists. Suppression of British. Establishment of Muslim League. Home Rule movement. First World War and India. And last point we have to learn Montagu Chelmsford Reform Act. So students, I will start now this particular topic here. So horizontally you can see properly here. If any doubt, you can put in chat box. So now here, partition of Bengal, also anti-partition movement. That point we have to take students here. So students, you know that already there were problems in that organization, means Indian National Particular Congress. Two groups were formed there. In Marathi we can tell that तिथे थोड़े मतभेद होते म्हणजे मवाळ आणि जहाल असे दोन गट निर्माण झालेले होते. हिंदी में हम बोल सकते हैं कि दो तरह के जो ग्रुप हो गए थे, मतलब गट हो गए थे. उनमें से कुछ लीडर्स ऐसे सोच रहे थे कि हमें एप्लीकेशन देना चाहिए, हमें मतलब विनती करना चाहिए हमारे स्वतंत्र के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए. ऐसा जो ग्रुप था उसको मॉडरेट ग्रुप कहते थे. वो मतलब मराठी में मवाड़ कहते हैं और विनम्र भी हम कह सकते हैं. और जो दूसरा ग्रुप था वो जो था जहाल ग्रुप था, उसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं. दिस टाइप ऑफ लीडर्स वेर thinking on that moment, thinking on that particular struggle. Without struggle we can't get anything. म्हणजे मराठीमधून सांगायचं झालं तर आपल्याला चळवळ केल्याशिवाय, आपल्याला काही हालचाल केल्याशिवाय काही मिळणार नाही. की आपल्या स्वातंत्र्यासाठी झगडलं पाहिजे, विनंत्या करून ते मानणार नाहीत. हिंदी में हम कह सकते हैं कि मतलब हमको जो है तो मूवमेंट करना चाहिए और स्वतंत्रता मिलने के लिए हमें जो कष्ट लेना चाहिए. सिर्फ विनती करके कुछ नहीं मिलेगा. ऐसा वो जहाल जो लोग थे, जहाल विचारसरणी के, वो लोग ऐसा सोच रहे थे. तो मैंने जो सवाल पूछा था केसीआर मराठा के बारे में, वो जो न्यूज़पेपर्स थे, वो जो अखबार थे, वो लोकमान्य तिलक जी ने स्टार्ट किए थे. मीन्स यू हैव टू रिमेम्बर दिस ऑल्सो. आपको ये ध्यान में रखना चाहिए. ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल विच वॉज स्टार्टेड बाय हिम ओनली. मतलब लोकमान्य तिलक जी ने जैसे न्यूजपेपर भी चालू किए वैसे कुछ फेस्टिवल भी चालू किए. काही सण उत्सव साजरे करायला सांगितलं की लोकांनी एकत्र यावं. मतलब जो लोग हैं उन्होंने एक संध रहना चाहिए. तो इसलिए शिव जयंती और गणेशोत्सव इस तरह के फेस्टिवल्स और उत्सव भी चालू हो गए. तो उसके बाद जो है वो क्या दिया है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल. लाइक दिस 2 points आर गिवन है. तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज द पार्टीशन ऑफ मूवमेंट. आल्सो बिफोर दिस वी लर्न अबाउट, हमने इसके पहले देखा कि रैंड जो था, वो रैंड के लिए, रैंड को किसके लिए इधर अपॉइंट किया था. वो जो प्लेग था, प्लेग के ऊपर काम करने के लिए, उस रोग पर काम करने के लिए. लेकिन क्या हुआ, उसने कुछ काम नहीं किया. चापेकर ब्रदर्स ने उसको किल किया. मतलब चापेकर, मराठीमध्ये चापेकर बंधूंनी त्यांना मारून टाकलं. सो नाउ पीपल आल्सो बिकमिंग सो मच लाईक angry here against the government. So now partition of Bengal is another point started here, because British people were thinking that when we can divide this, if we can divide this people, then we will become successful. Means
means the British decided to use that policy, divide and rule. Divide and rule means we can divide these people which are from a Hindu religion, which are from Muslim religion. If they will means if we will divide them, then unity will be not there in this India, and we will become successful. मतलब हिंदू आणि मुस्लिम इनमें क्या करना चाहिए, हमको डिफरेंसेस मराठी में जर सांगायचं त्यांचे मतभेद निर्माण करायचे, मीन्स हिंदी में हम कह सकते हैं उनको क्या करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए हिंदू और मुस्लिम को। ऐसा कौन सोच रहा था? ब्रिटिश पीपल सोच रहे थे। मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और रूल करो, मतलब डिवाइड करो उनको, ऐसा अलग अलग रखो और उनमें उन पर रूलिंग करो, उन पर पावर, उन पर सत्ता मिलाओ। ऐसा जो थॉट था, ऐसा जो विचार था, वो ब्रिटिश लोगों का था। टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन Hindu and Muslim community. The then Viceroy Lord Curzon contributed to it. So here, Lord Curzon was the person who was the main person here, who was in charge of this particular movement, particular partition of Bengal. So it was actually thing to create that Hindu and Muslims separation. मतलब हिंदू एंड मुस्लिम को अलग अलग करना, ऐसा मोटिव था, ऐसा उनका जो विचार था। वो वायसराय जो था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो उसको अंडरलाइन कीजिए, ध्यान में रखिए। बंगाल वॉज वेरी लार्ज प्रोविंस। बंगाल तो बड़ा प्रोविंस था, बड़ा राज्य था, बड़ा किंगडम था उस समय। टू कैरी आउट द वर्क ऑफ दिस प्रोविंस वॉज डिफिकल्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब उनका मेन जो उद्देश्य था, मेन जो मोटिव था, हिंदू और मुस्लिम में अलग 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 रखने का उन दोनों को, और उनमें एक तरह की दूरी निर्माण करने का, ऐसा उनमें उनका उद्देश्य था। मगर उन्होंने दिखाया क्या, हमारा जो उद्देश्य है वह उद्देश्य नहीं है। मतलब उन्होंने बताया अलग थिंग, अलग गोष्ठ, मतलब अलग क्या बताया कि ये जो प्रोविंस है ये बहुत बड़ा है और इधर हम काम काम कर नहीं सकते, मतलब वर्किंग कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ये इस जो किंगडम है, ये जो प्रोविंस है, इसके पार्ट करना चाहिए, इसके भाग करना चाहिए। और ऐसा रीजन दिखा के, ऐसा कारण दिखा के उन्होंने ये पार्टीशन किया। बाय पुटिंग अप दिस रीजन इन द ईयर ऑफ 1905, स्टूडेंट्स प्लीज अंडरलाइन दिस ईयर 1905, he declared that he means Lord Curzon, he means Lord Curzon declared that the partition of Bengal province. With this partition, arrangement was made such that majority Muslims will remain in East Bengal and West Bengal for majority of Hindu people. So like this strategy was there, but there was one secret plan. उनका कुछ तो ऐसा रहस्य था उन ब्रिटिश लोगों का। क्या रहस्य था, काय असतं म्हणजे त्यांचं गुपित होतं, एक स्ट्रॅटेजी होती that British also, if the Hindu and Muslims were divided due to partition, the freedom movement will be weakened, it will not strengthen, means movement will become weak। मतलब हमारा जो मूवमेंट चल रहा है, हमारी जो मूवमेंट चल रही है, वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। मतलब वो स्ट्रांगली नहीं पार्टिसिपेट हो गए ये लोग, अगर उनको हमने अलग अलग रखा तो। ऐसा वो सोच रहे थे। तो इधर क्या हुआ, इधर एक दूसरी मूवमेंट हो गई। वो जो मूवमेंट थी वो इसके अगेंस्ट थी, मतलब जो हो रहा था ये पार्टीशन और कुछ तो लॉर्ड कर्जन ने लाया था, इसके अगेंस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट हुई उसका नाम था एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी मीन्स अपोजिट, अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, अपोजिट टू दैट पार्टीशन मूवमेंट। विच पार्टीशन? दैट इज द बंगाल्स पार्टीशन। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस, you have to remember this: east bengal, east bengal for muslims, and west bengal for hindus। this point you have to remember, means how they did like division, मतलब उन्होंने कैसा डिवीजन किया और कौन सा पार्ट किनको दिया, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे। एंटी पार्टीशन मूवमेंट, देयर वॉज पब्लिक अवेकनिंग स्टूडेंट्स, people became alert, people became alert against partition, not only in Bengal but all over the India। मीन्स बंगाल का एक उदाहरण है, बंगाल का तो बंगाल तो फक्त उदाहरण है, मतलब बंगाल का सिर्फ एग्जाम्पल है, उदाहरण है। सब इंडिया के लोग जागरूक हो गए, सब इंडिया के लोगों के ध्यान में आ गया कि कुछ तो इधर ब्रिटिश लोगों ने क्या किया है, जो प्लान किया है, स्ट्रेटेजी किया है हमारे इंडियंस के अगेंस्ट, वो उनके ध्यान में आया।
16 October, that particular day, observed as partition, day of partition, was observed as a national mourning day. So, national mourning day means what? Meaning of this particular day, all over India, there was a protest. There were protests. Protest means opposition. Protest means opposition. People were opposing that particular meetings to condemn the government decision to means stop to oppose government decision. And also our people started to use song, that is our song, you know, that Vande Mataram came to be sung everywhere. You know that it is very means important thing that nationalism was there, patriotism was there, people becoming aware for our freedom struggle. Also as a symbol of unity, Raksha Bandhan program also taken there for showing that we are together, we are united. These programs happened there, held there. Also, students, like you students also there, large number they participated in this movement, and they boycotted their government schools. Government schools means in sense that time British schools were there. British government started their schools. No, so boycotted means prohibit, don't go. Means prohibit to go there. Means they not went to school. They stopped to go that particular schools which were the government schools, that British government schools. Also colleges had and participated in that movement, all the students of college students and school students also. The leadership of this movement was in the hand of that very important personality, you know that Surendranath Banerjee. Also, other some leaders were there, Anand Mohan Bose, Rabindranath Tagore. This personality also were there, and such other leaders. You know that Rabindranath Tagore's personality is very important here because our national anthem our national anthem is made by him only. So that person also so much important for this movement, for this freedom struggle. The extent of Indian National Congress increased due to the anti-partition movement. Why this movement was happening? Because these British people are doing means partition. ये ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं? हम जो हिंदू एंड मुस्लिम एक साथ रहते हैं, उनमें हमारे में क्या करते हैं? मतभेद निर्माण करते हैं. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मूवमेंट करना चाहिए. हमें कुछ तो आंदोलन करना चाहिए. तो हमारे लोगों ने आंदोलन किया. आपल्या लोकांनी आंदोलन केलं आणि ह्या मुवमेंटच्या विरोधात आंदोलन जे झालं ते खरोखरच महत्वाचं होतं. दॅट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बहुत महत्वपूर्ण था. ये बात ध्यान में रखना चाहिए. फिर बिकेम नेशनल मूवमेंट, ये राष्ट्रीय मूवमेंट हो गई. ये राष्ट्रीय मूवमेंट हो गई. ये जो मूवमेंट थी, ये जो मतलब ये जो आंदोलन था वो राष्ट्रीय लेवल का था. ओविंग टू severity of dissatisfaction means our people did like one promise there, that severity of dissatisfaction means what? People were not satisfied. हमारे जो लोग थे वो असंतुष्ट हो गए थे, संतुष्ट नहीं थे, अनहैप्पी थे. वो अनहैप्पीनेस था. The British annulled the partition of movement. So what happened here, students? You can see this movement. Because of this movement, British people cancelled. British people cancelled this particular partition over there of this Bengal because of this movement. Means this partition was cancelled by British. Another point is that 4-point program we have to learn. 4-point program of Indian National Congress. In between, I will check that if you have any response, anything, any doubt or anything. If any other doubt, that also you can ask here. Doubt, sir, please ask question in Marathi. Okay. येस, मराठीमध्ये पण मी तो पॉइंट एक्सप्लेन करतोय.
Okay. So now next point is that 4-point program of Indian National Congress. So that Indian National Congress made that 4-point program that we have to take information now here, students, that you listen carefully. So Gopal Krishna Gokhale, please underline this personality, very famous personality over there in the history. About this means personality, we should understand that one thing, that he was also president. He was also main person of that Indian National Congress. Students, if any doubt is there, you should ask that if any meaning problem is there. Last time I told you to complete that homework, hard words with meaning you have to write, and also you have to complete that notes of this lesson particular. Means I told you how to write that notes last time, that you have to complete. मतलब आपको जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो भी लिखना है, और इसमें जो कठिन शब्द है, इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, उनके मीनिंग भी लिखना है. यू हैव टू राइट मीनिंग ऑल्सो, उनके अर्थ भी लिखना है. तो इधर आपको जो फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी टीच किया, और बंगाल का जो हो गया, उसमें कोई दिक्कत होगी, उसमें कोई प्रॉब्लेम होगा, जर मराठीमध्ये सांगायचं तर त्याच्यात काय प्रॉब्लेम अडचण असेल तर सांगा, विचारा. 4-point program of Indian National Congress. Next point. Gopal Krishna Gokhale. He was the president. He was the main person of National Congress, of Indian National Congress. In which year? That was the year 1905. Actually, this organization started in that 1885. That time, Ramesh Chandra Banerjee was the president, first president. That also we should remember. This person, Gopal Krishna Gokhale, he supported that movement. Which movement? Anti-partition movement. Means anti-partition means the Bengal's anti-partition movement. That time, that's why this British people, मतलब उन्होंने जो सहकार्य किया इस मूवमेंट के लिए, एंटी पार्टीशन मूवमेंट के लिए, बंगाल का जो पार्टीशन हो रहा था वो कैंसिल करने के लिए जिन्होंने प्रयत्न किए, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले का भी नाम था. इसलिए ब्रिटिश लोग मतलब सरेंडर हो गए, ब्रिटिश पीपल हार गए, ऐसा भी हम कह सकते हैं. और उन्होंने ये मूवमेंट क्या की, कैंसिल की. मतलब वो मूवमेंट हो नहीं, हुई नाही उस समय. मतलब मराठीमध्ये ती मुवमेंट झाली नाही, कारण आपल्या लोकांचं तेवढा काय होता, आंदोलन होतं, आणि लोकांची तेवढी युनिटी होती. दैट वी हैव टू रिमेम्बर. मतलब हमारे लोग एक थे, और उस एकता की वजह से ब्रिटिश लोगों को क्या करना पड़ा, वो मूवमेंट कैंसिल करनी पड़ी. जो करने वाले थे, पार्टीशन करने वाले थे, सॉरी, वो जो पार्टीशन करने वाले थे, वो पार्टीशन कैंसिल करना पड़ा हमारी लोगों के एकता के कारण, हमारे लोगों ने की गई मूवमेंट के कारण, आंदोलन के कारण. तो इसमें दादा भाई नौरोजी जो प्रेसिडेंट थे, यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग, he supported that anti-partition movement. This point also you should remember. मतलब क्या, गोपाल कृष्ण गोखले ने इस मूवमेंट में भाग लिया था, उन्होंने त्यांनी सहभाग घेतलेला होता. दादाभाई नौरोजी आर द प्रेसिडेंट ऑफ 1906 और 1906 1906 मध्ये, 1906 में दादाभाई नौरोजी क्या थे, प्रेसिडेंट थे. 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट थे. उनके नाम हमें ध्यान में रखना है, उनके ईयर हमको ध्यान में रखना है, किस ईयर में वो प्रेसिडेंट थे, किस ईयर में वो प्रेसिडेंट ऐसा उनके पास पद था. फॉर फर्स्ट टाइम ही प्रोनाउंस्ड दैट द वर्ड स्वराज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज? फ्रॉम द स्टेज he means pronounced that word Swaraj, my kingdom. In his presidential speech, he gave that message. Which message he gave to the Indians, to the people? Remain united. Don't be separate from each other. We have to live together. We have to fight. Means again that British. Try sincerely. Means try to get that freedom sincerely. Fulfill that the aim of Swaraj. Fulfill that the aim of Swaraj. That also thought given by Dadabhai Nauroji. So that today we will be able to save lakhs of people suffering from which thing in our India, poverty means poorness, hunger means not getting food. मतलब क्या कहा दादाभाई नौरोजी ने, हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वराज्य के लिए, हमें स्वराज्य अगर चाहिए, हमारा राज्य अगर चाहिए, स्वराज्य मीन्स हमारा राज्य, खुद का राज्य, स्वतःचं राज्य जर पाहिजे असेल, त्यांनी त्यांच्या भाषणामधून सांगितलं की लोकांनी सगळे एकत्र राहावा, एकसंध रहना चाहिए. ट्राय सिन्सियरली, मतलब आपले प्रयत्न प्रामाणिकपणे पाहिजेत मराठीमध्ये.
मतलब हिंदी में क्या हम बोलेंगे कि हमें जो प्रयत्न करना है वो हमें सिंसियरली, मतलब जो दिल से करना चाहिए प्रयत्न हमारे स्वराज्य के लिए। और फुलफिल द एम ऑफ स्वराज, मतलब हमारा जो एम है, हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है स्वराज्य मिलने का, उस स्वराज्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो जो कोशिश है वो कोशिश करने की जरूरत है। so that today we will be able to save lakhs of people suffering from poverty। मतलब आज जो लोग हम देखते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनको मतलब खाना नहीं मिलता, हंगर जो होती है, मतलब कुछ लोगों को खाना नहीं मिलता, जहाँ अन्न मिलत नहीं, डिसीजेस, खूब सारे आजार है, बहुत सारी बीमारियां है, एंड इंडिया विल गेट रिस्पेक्टेबल पोजीशन अमंग डेवलप्ड कंट्रीज। इफ वी विल फाइट लाइक दिस, अगर हम इस तरह से लड़ेंगे तो सच्चे में हमारा देश स्वतंत्र होगा, और हमारे जो ये प्रॉब्लम्स है, कुछ जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से भी हम बाहर आएंगे, और जो कुछ समस्याएं हैं वो समस्याएं भी मिट जाएंगी, और हमारा जो नाम है, हमारा जो देश का नाम है, वो डेवलप्ड कंट्रीज में, जो राष्ट्र, जो देश विकसित हो गए हैं, जिनका विकास हो गया, जिनका प्रोग्रेस हो गया है, उनमें हमारा नाम आएगा। ऐसा थॉट, ऐसा विचार दादा भाई नौरोजी ने रखा था। स्टूडेंट्स, स्वराज इन दिस वर्ड मीनिंग इज देयर, माय किंगडम, हिंदी अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं, मराठीमध्ये आपण म्हणू शकतो स्वतःचे राज्य, माझे राज्य, एंड हिंदी वी कैन से, हिंदी में हम बोल सकते हैं मेरा खुद का राज्य। तो वो राज्य अगर चाहिए तो उस राज्य के लिए हमें कोशिश करने की जरूरत है। इन द सेम सेशन, इन दैट पर्टिकुलर सेशन, दैट सेम मीटिंग, इस मीटिंग में, इस मीटिंग के दौरान जब दादा भाई नौरोजी 1906 में जब प्रेसिडेंट थे, स्वराज स्वदेशी, दैट पर्टिकुलर यू कैन सी हियर, अंडरलाइन दिस पर्टिकुलर थिंग, स्वराज स्वदेशी, national education, and fourth point there is a boycott. This is called 4-point program. That's why this point name is 4-point program. Why this point name is 4-point program? This program was done by, this program was given by Dadabhai Nauroji in the year of 1906, 1906, when he was the president. So that time people should misunderstand that, and for this purpose he gave this 4-point program. Swaraj, माय किंगडम, माझे राज्य, स्वदेशी, मी फक्त माझ्या स्वराज्यात, माझ्या इंडियामध्ये तयार झालेल्याच वस्तू वापरणार, तर इट्स कॉल्ड स्वदेशी। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वराज मतलब खुद का राज्य, खुद का देश, स्वदेशी मतलब जो चीजें मेरे देश में तैयार होती है वही चीजें मैं इस्तेमाल करूंगा, दूसरे देश की चीजें नहीं इस्तेमाल करूंगा। ऐसा थॉट जो था, ऐसा विचार जो था, वो स्वदेशी का अर्थ था, वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। थर्ड जो है नेशनल एजुकेशन, मतलब क्या, हमें नेशनल एजुकेशन लेना है, हमें हमारे देश का एजुकेशन लेना है। और बॉयकॉट मीन्स और दैट इज द प्रोहिबिशन, मतलब जो ब्रिटिश गुड्स है, जो फॉरेन गुड्स है वो नहीं लेना है, उसमें क्या करना है, बहिष्कार, मतलब वो लेना नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। दिस 4-point program was unanimously, meaning of unanimously, there is the united, with unity, मतलब एक मत के साथ, एक ओपिनियन के साथ, एक मत, सब लोगों का एक मत हो गया क्या, कि हम ए 4-point program को एक्सेप्ट करेंगे। So unanimously accepted by the Indian National Congress, that particular organization accepted it due to Swadeshi movement. We will be self-sufficient. Really, really. Swadeshi means in our country, हमारे जो देश में जो कुछ तैयार होता है वही इस्तेमाल करने का, दूसरे देश का नहीं इस्तेमाल करने का। तो इसके कारण हमारा देश क्या बनना लगा था, सेल्फ सफिशिएंट, मतलब क्या, डिपेंडिंग ऑन मीन्स अस ओनली, नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद का काम, खुद का जो प्रोडक्ट है, खुद के जो इंडियन जो प्रोडक्ट है, इंडियन जो चीजें है, वही इस्तेमाल करने का थॉट जो दिया था वो स्वदेशी इस शब्द से दिया था। टू फॉलो द पाथ ऑफ स्वदेशी वी नीड टू ब्रिंग टुगेदर कैपिटल। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या करना चाहिए, स्वदेशी का जो पाथ है, स्वदेशी का जो रास्ता है, उसको फॉलो करने के लिए क्या जरूरी है, हमारे पीपल में क्या जरूरी है, कैपिटल होना जरूरी है। कुछ जो फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, कुछ जो बिजनेस स्टार्ट करने का है हमारे देश में, उसके लिए कैपिटल, उसके लिए जो जरूरत चीजें है उसमें कैपिटल आता है, उसमें मनी आती है। कैपिटल मतलब जो
उसके लिए बिजनेस के लिए कुछ पैसा लगेगा, रिसोर्सेस लगेंगे, कुछ मटेरियल्स लगेंगे, कुछ साधन सामग्री लगेगी, मैन पावर लगेगा, मैन पावर भी लगेगी, मतलब क्या, जो लोग हैं उसमें कामगार वर्ग भी लगेगा, workers भी लगेंगे, और such other forces, and from this benefit of the country could be achieved. It was decided that boycotting the foreign goods is the first step. तो क्या करने का है, पहले क्या करने का है, पहले एक गोष्ट एक जो मतलब एक चीज जो है, हिंदी में चीज बोलेंगे, एक चीज जो करनी पड़ेगी हमें, वो क्या है, जो फॉरेन गुड्स इधर आता है उसे क्या करना है, बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट मतलब उसमें उससे उस चीजें लेना नहीं है, मतलब उसमें उस पर बहिष्कार डालना है, ऐसे ऐसा वो थॉट था। तो फॉरेन गुड्स इधर नहीं आना चाहिए। ड्यू टू बॉयकॉट वी विल बी एबल टू अटैक द रूट्स ऑफ ब्रिटिश imperialism, and because of this particular boycott movement or particular boycott, that particular thought, 4 point programs in that boycott of the thought, that particular we could attack, मतलब हम क्या करते थे, करते थे उस समय इंडियन लोग अटैक कर रहे थे डिरेक्टली। वो एक प्रकारचा जो हल्ला होता ब्रिटिशांच्या मुळावरतीच, मतलब ब्रिटिश लोगों का जो मेन और मुख्य प्रमुख जो कुछ थी थिंग थी, उसने क्या करने का, अटैक करने का, वो ऐसा मोटिव था। ऑल द ओपिनियन ऑफ सम ऑफ द रीडर्स। So here you can see, do you know this box is there? It is also very important box, that Gopal Krishna Gokhale. Gopal Krishna Gokhale, he was the person, this person founded the Servants of India Society in the year of 1905. In that particular year, to create love for the country, teach them sacrifice of self-interest, differences between religion and caste should be destroyed, should be destroyed, and to create social harmony, spread of education were the main objectives of the Servants of India Society. So this person's work also very important, that we should remember. So again I will explain in Hindi and Marathi. गोपाल कृष्ण गोखले हे अशी व्यक्ती होती की ज्यांनी काय केलं, एक ऑर्गनायझेशन चालू केली, एक सोसायटी स्थापन केली। मतलब उन्होंने क्या किया, एक सोसाइटी फाउंड की, उन्होंने एक सोसाइटी स्थापन की। उस पर्टिकुलर संस्था का, ऑर्गनायझेशन का नाम था सर्वंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी। सर्वंट मतलब कामगार बोलते हैं, सर्वंट म्हणजे मराठीमध्ये कामगार म्हणतात। 1905 साली 1905 में उन्होंने सोसायटी स्थापित की टू क्रिएट लव फॉर द कंट्री, मतलब देश के लिए लोगों में क्या करना, लव मतलब प्रेम निर्माण करना देश के लिए। टीच देम सैक्रिफाइस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब उनको सिखाना कि हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए, हमें हमारी जान भी देनी चाहिए हमारे देश के लिए। डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन एंड कास्ट शुड बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो डिफरेंसेस होते हैं, जो मतभेद होते हैं हमारे कास्ट में, हमारे जाति में, हमारे धर्म में, उनको भी क्या करने का है, उनको भी मिटाना है, ऐसा भी थॉट दिया था। डिस्ट्रॉयड एंड टू क्रिएट सोशल हार्मोनी, सोशल हार्मोनी इन सेंस दैट इज कॉल्ड यूनिटी, एकता रखना चाहिए, हमारे सोसाइटी में एकता होना जरूरी है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन मतलब शिक्षण का भी प्रसार करना जरूरी है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स, ये सब उद्देश्य रखे थे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, मतलब जो कमिटी स्थापन की थी, जो सोसाइटी स्थापन की थी, ये जो संस्था थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम जो था वो सोशल मतलब सोसाइटी के लिए था। इस सोसाइटी में क्या होना चाहिए, मतलब सुधार होना चाहिए और प्रोग्रेस होनी चाहिए, इसलिए ये सोसाइटी काम कर रही थी। जो सोसाइटी स्टार्ट की थी, स्थापन की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगेन विल सी, actually I took this particular point. Now here next point we have to take this box point I took firstly,
Next is the main point, that is the already we learned about this, means about these groups we got some idea, I told you, but then also we have to understand differences in between them. So first I will see your any chart is there in chart section. Sir, annulled means, yes, I told that time. Okay, I will tell you once again, no problem. You can ask meaning like this. Very good. Doubt you have to ask everyone, students. So annulled means cancelled. Meaning of annulled, cancelled. That particular movement, particular partition, म्हणजे जे पार्टीशन ते करणार होते ना बंगालचं, बंगाल प्रांत का जो वो क्या करने वाले थे, विभाजन करने वाले थे ना, वो बंगाल प्रांत का विभाजन उन्होंने क्या किया, कैंसिल किया. क्यों कैंसिल किया? क्योंकि हमारे लोगों ने आंदोलन किया. हमारे लोगों के आंदोलन की वजह से ब्रिटिश पीपल सरेंडर हो गए, ब्रिटिश पीपल हार गए, और उन्होंने क्या किया, एनुअल्ड किया. वो जो था क्या था, वो जो पार्टीशन करने वाले थे वो पार्टीशन कैंसिल हो गया. यस, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क. सो नाउ मॉडरेट आणि एक्स्ट्रीमिस्ट में क्या फरक था, त्यांच्यात नेमका फरक काय होता, म्हणजे मॉडरेट ग्रुप नेमका होता कसा, एक्स्ट्रीमिस्ट ग्रुप नेमका होता कसा. मवाल जो लोग थे वो कैसे थे, जहाल जो लोग थे वो कैसे थे. मॉडरेट मतलब मवाल होते हैं, मतलब क्या, वो मराठी में मवाड़ बोलते हैं, मराठी में हम जहाल बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट को. तो हिंदी में क्या बोलने का कि मॉडरेट जो होते हैं वो कैसे, सिंपल, मतलब बिहेवियर में भी सिंपल है वो, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं. और एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, जहाल जो होते हैं वो जरा स्ट्रिक्ट होते हैं. उनमें जो मूवमेंट की एक मूवमेंट करने का जो उनका काम होता है, उनको जहाल लोग हम कह सकते हैं. The differences between that ideologies, ideology means thought, meaning of ideology, विचार जो थे उन लोगों के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसमें क्या हो गया, rose to a great extent in the Surat session, which session happened in the year of 1907, 1907 में जो एक सेशन हो गया, 19 मतलब 1907 में जो एक सेशन हो गया, जो एक मीटिंग हो गई, उसमें क्या हो गया, the moderates were trying to keep aside the resolution of Swadeshi and boycott. Moderate people were doing like this thing. मतलब वो सोच रहे थे ये जो स्वदेशी है, ये जो बॉयकॉट, ये जो थिंग चल रही है 4 पॉइंट प्रोग्राम की वजह से, दादा भाई नौरोजी ने जो कहा है, उसको हम बाजू को रखेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे. कीप असाइड मीन्स बाजूला ठेवणे, किंवा ते बाजूला ठेवायचं. आणि जे मे जो काय कशावरती लक्ष द्यायचं, तर that particular thing, extremists trying that this opposition should be not successful. So because of this what is happening, जे एक्स्ट्रीमिस्ट लोकांनी लक्षात घेतलं होतं, कारण मॉडरेट लोक काय म्हणाले की हे सगळं बाजूला ठेवायचं. मॉडरेट लोगों ने क्या सोचा था, वो जो सोचा था कि बॉयकॉट और स्वदेशी, ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें हमें क्या करना चाहिए, असाइड, कीप असाइड, मतलब बाजू को रखना चाहिए. तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का क्या करना था, extremists trying that this opposition should not be successful. If you are opposing like this, then it should be not successful. मतलब हमें एक संघ रहना चाहिए, हमें एक रहना चाहिए. अगर आप ऐसा कहेंगे तो हम कैसे स्वतंत्रता मिल सकते हैं. That was the problem. तो इसलिए क्या हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, these moderate leaders blamed that extremist leaders are trying to capture the Indian National Congress. उनको क्या लगा, गोपाल कृष्ण गोखले क्या बोले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी क्या बोले, फिरोज शाह मेहता क्या बोले, वो जो ग्रुप के लीडर थे, वो कौन से ग्रुप के लीडर थे, वो मॉडरेट लीडर थे. मतलब वो ऐसा जो ग्रुप था, जो विनती करने वाला, जो रिक्वेस्ट करने वाला जो ग्रुप था, मवाल जो लोग थे, उनको क्या लगा कि ये जो जहाल लोग ये क्या कर रहे हैं, ये सब कब्जा मिला रहे हैं, तो उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या करना है, उनकी ही सत्ता लानी है, उनको ही काम करने का है, ऐसा उनको लगा. लाला लाजपत राय ट्राई टू एक्ट एज ए मेडिएटर. तो हियर लाला लाजपत राय ने क्या किया, उन्होंने ऐसा, ये जो कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं, जो कुछ समस्या आ गए, वो समस्या छुड़ाने के लिए उन्होंने एक ऐसा काम किया, मेडिएटर का काम किया. मतलब मराठीमध्ये त्याला मध्यस्थी किंवा त्यांनी जे पर्टिक्युलर भांडण आहे ते सोडवण्याचा प्रयत्न केला. मतलब वो जो झगड़ा था वो छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, कोशिश की. एज पर द टिलक्स ओपिनियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल प्लेटफॉर्म. इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, ये तो नेशनल प्लेटफॉर्म है. ये क्या है, ये हमारे राष्ट्र का प्लेटफॉर्म है, ये हमारे राष्ट्र का मेन स्टेज है.
इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने क्यों चालू किया है। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन था वो पॉलिटिकल पार्टी अभी हो गई है, ये किस लिए चालू हो गई है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो समस्याएं है, हम क्या कर सके उसके बारे में कुछ बातें कर सके, वो छुड़ा सके, हमारी जो प्रॉब्लम्स, हमारी जो समस्या है वो मिटा सके, इससे स्थापित किए। और अगर हम ही ऐसा झगड़ा करने लगे तो क्या कैसे स्वतंत्रता मिलेगी। हेंस इट शुड नॉट बी डिवाइडेड। तो इसके मतलब इस समय वो डिवाइड नहीं हो गई। ड्यूरिंग दिस सेशन द टेंशन इंक्रीज, बट टेंशन ऑल्सो इंक्रीज सो मच, no compromise was possible. Finally, there was split. Students, split means what? Meaning of split, that is the division. Meaning of split, that is the division. Split means separated. Meaning of split, broke means that particular organization broke into two pieces, like two phases. That we learned about that moderate and extremist group. There was a split in the Indian National Congress. So it was a beneficial thing. ये तो ब्रिटिश लोगों के लिए अच्छा ही था। क्या वो मतलब इंतजार में ही थे कब हमारे लोग अलग अलग हो रहे हैं, और कब ब्रिटिश लोग, मतलब ब्रिटिश लोगों का सोचना था कि कब हम इन पर राज्य कर रहे थे, तो ऐसा सोच रहे थे, ऐसा उनके मन में था। सेपरेशन ऑफ द ब्रिटिश, तो इधर क्या हो गया, उन्होंने सेपरेशन करना चालू किया। सेपरेशन मतलब बहुत क्रशिंग दैट मोमेंट्स, क्रशिंग, सेपरेशन, गिविंग ट्रबल, सेपरेशन। After anti-partition movement, which was happened for Bengal, the government was disturbed. Already that एक मूवमेंट झाली होती, एक आंदोलन हो गया था बंगाल के अगेंस्ट। बंगाल को जो पार्टीशन करने वाले थे ब्रिटिश लोग, लॉर्ड कर्जन, हमारे लोगों ने आंदोलन किया और पार्टीशन एनुअल्ड हो गया, कैंसल्ड हो गया, ब्रिटिश लोगों ने एनुअल्ड किया वो। तो उस समय ब्रिटिश लोग ऑलरेडी क्या थे, मतलब हमारे अगेंस्ट एंग्री हो गए थे। गवर्नमेंट ऑल डिस्टर्ब लुकिंग एट इन्फ्लुएंशियल पब्लिक प्रोटेस्ट, मतलब वो जो पब्लिक प्रोटेस्ट था उसके बारे में वो ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और इम्प्रेसिव हो गए थे। मतलब इम्प्रेसिव किस अर्थ से लेना है हमें, वो ज्यादा ज्यादा एंग्री हो गए थे और ज्यादा ज्यादा सोचने लगे थे ये लोग अगर एक आएंगे, एक हो जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। टू कंट्रोल दिस मूवमेंट द गवर्नमेंट यूज दैट पॉलिसी of separation. That particular separation means what? That is the crushing, that is the pressing that particular movement. Holding the public meetings was legally banned. So they did some compulsion there. There is some restrictions over there. Restriction there. काही त्यांनी अशी मनाई केली, बंदी घातली. बॅन मीन्स मतलब मनाई करणं, मराठीमध्ये याला बंदी घालणे। कशाला बंदी घातली की तुम्ही मीटिंग करू शकत नाही, आप लोग लोग क्या नहीं ले सकते, मीटिंग नहीं ले सकते, आप एक नहीं आ सकते, मतलब यू कांट कम टुगेदर, यू कांट डू एनी मीटिंग्स और ऑल। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वर गिवन टू दैट दोज हु ब्रोक द लॉ। अगर आपने जो नियम है ये अगर आपके नियम के अनुसार नहीं पालन किया तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। कैसी मिलेगी, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। स्कूल चिल्ड्रन आल्सो वर बिटन अप, मतलब ब्रिटिश लोग इतने इतने बुरे तरह से बर्ताव कर रहे थे, हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल चिल्ड्रन को भी वो क्या कर रहे थे, मार रहे थे। जो जो बोलेगा वंदे मातरम और ऐसी कुछ घोषणाएं देगा उनको भी पीट रहे थे, पिटाई कर रहे थे। मेनी restrictions were imposed on newspapers, also they put restriction means prohibition। उन्होंने न्यूज़पेपर पर, मतलब जो न्यूज आती थी अखबार में, जो न्यूज आती थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उन पर भी रेस्ट्रिक्शन डाला, उन पर भी कुछ नियम डाले, उन पर भी मतलब मनाई, कुछ नियमों की मनाही आ गई। मैनी प्रिंटिंग प्रेस ऑल्सो कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड मीन्स टेक लीगली इन मराठी, जब्त करने। उसमें क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट के अंडर ली वो जो पर्टिकुलर प्रिंटिंग प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस को भी कन्फिस्केटेड किया ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्लेम ऑफ क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। और उन्होंने क्या आरोप लगाया, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है वो ऐसा आरोप लगाया कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट पर टिका कर रहे हैं, हमारे सरकार पर टिका कर रहे हैं। तो इसलिए प्रिंटिंग प्रेस भी बंद किए उन्होंने, उसको कन्फिस्केट किया, मतलब ताला लगाया। और गवर्नमेंट के अंडर वो बंद कर लीगली मतलब कायदे के अनुसार, कायदा के अनुसार वो बंद हो गई। किनका कायदा था, ब्रिटिशों का कायदा था, हमारा तो कायदा नहीं था। ब्रिटिशों ने कायदा बनाया था, ब्रिटिश कायदा बनाते थे और ब्रिटिश ही न्याय देते थे।
उस समय हमको न्याय जो मिलता था वो ब्रिटिशों से ही मिलता था। वो मतलब सही या गलत ये पूछने के भी हमें उधर मतलब कुछ ऐसा अधिकार भी नहीं था हमारे लोगों को। इतना हमारा छल कपट ब्रिटिश लोगों ने उस समय किया था। Writers, also editors, were imprisoned. They got their punishment. Writers and editors of newspapers means British people kept them in jail. Imprisoned means meaning of imprison arrested. They arrested them. British arrested them. Strict actions were taken against the extremist leaders. अब नाउ यू सी दैट आपको मतलब समझ में आया होगा एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो होते जहाल लोग जहाल जो लीडर्स थे उनका क्या मानना था। हम विनती नहीं करेंगे, हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम मूवमेंट करेंगे और हमारी स्वतंत्रता मिलाएंगे। मगर उनके भी बारे में उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन ली ब्रिटिश लोगों ने। दिस लेड टू सेवियर रिएक्शन इन बंगाल। बंगाल में बहुत सारा मतलब रिएक्शन हो गई, बहुत सारा प्रतिकार हो गया। रिवॉल्यूशनरीज जो थे हमारे इंडियन रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्या, जो रिवॉल्यूशन करता है, जो मूवमेंट करता है, जो आंदोलन करता है उनको रिवॉल्यूशनरीज कहते हैं। द रिवॉल्यूशनरीज एडॉप्टेड और एक्सेप्टेड मतलब उन्होंने स्वीकार किया। हमारे यहाँ क्रांतिकारक लोगों ने, क्रांतिकारक भी बोल सकते हैं हम, क्या किया जो मार्ग है वो कुछ जो मार्ग फायरिंग के, बॉम्ब ब्लास्टिंग के ऐसे मार्ग मतलब इस्तेमाल करने के लिए शुरुआत की। फायरिंग था, बॉम्ब ब्लास्टिंग था। तो इसके कारण क्या हुआ दिस बॉम्ब अटैक्स वर एडवोकेटेड थ्रू केसरी न्यूज़पेपर्स बाय लोकमान्य तिलक। The charge of sedition was put on. So here what happened? That particular thing means here you can understand Lokman Tilak put this incident in that newspaper, Kesari newspaper, and government put charge. Government put one blame on our Lokman Tilak that they are doing sedition. Sedition means break the law of government. Meaning of sedition, break the law of government. जुन्या काळामध्ये याला म्हटलं जायचं मराठीमध्ये राजद्रोह, राजाच्या आज्ञा न पाळणे, राजद्रोह। आणि तो आरोप आपल्या लोकमान्य टिळकांवरती त्यांनी लावला आणि त्यांना यू कॅन अंडरस्टँड दॅट न्यूजपेपर वॉज अ पर्टिक्युलर न्यूजपेपर आणि लोकमान्य टिळकांना त्यांनी अटक केली, मंडाले जेलमध्ये ठेवलं। मंडाले जेल में लोकमान्य तिलक को भेजा ब्रिटिश लोगों ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि जो न्यूज़पेपर है केसरी न्यूज़पेपर जो तिलक ने चालू किया है उसमें हमारी टीका टिप्पणी की है, इसलिए इस व्यक्ति को मतलब लोकमान्य तिलक को उन्होंने मंडाले जेल में टोटली पूरे 6 साल मतलब 6 साल के लिए क्या किया, इम्प्रिजनमेंट किया, जेल में रखा, अरेस्ट किया। बिपिन चंद्र पाल also sentenced to jail because of that movement, and Lala Lajpat Rai was deported in Punjab. Deported means what? Deported means send them away, send them away from the particular place। मतलब दूसरे राज्य में भेजा ब्रिटिश लोगों ने उन्हें किधर भेजा, पंजाब में भेजा, डिपोर्ट किया। हद्द पार करने मराठी मध्ये मतलब सीमा के बाहर निकालना। जो राज्य की सीमा होती है उस राज्य की सीमा के बाहर निकालना मतलब दूसरे राज्य में भेजना, ऐसा कहते हैं डिपोर्ट को। तो सेंड अवे। So students, you know these three leaders were very famous leaders. You can see picture also here. Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Pal Bipin Chandra Pal. Very famous personalities from that group. Which group? Extremist group was there. That was the main thing here we have to remember. Any chart is there? Okay. Boycott. Okay, boycott means someone wrote that bahishkar in Marathi. Okay, so bahishkar in Hindi also we can tell, and simple meaning I will tell you, that is the means disagree to take something. Disagree to take something means that is the disagreement to accept something or to take something। तो वो जो ब्रिटिश और इधर फॉरेन कंट्रीज का जो गुड्स आ रहा था इधर हमारी कंट्री में, वो नहीं लेने का, वो लेने का नहीं। उनने क्या उसमें बहिष्कार डालने का। बहिष्कार मतलब उनका जो कुछ प्रोडक्ट है वो नहीं इस्तेमाल करने का, हमारा ही इस्तेमाल करने का। स्वदेशी मतलब जो हमारे देश में तैयार होता है वही लेने का। इसको क्या कहते हैं, बहिष्कार
means that is the bahishkar means here you can understand that is the boycott. Bahishkar. Okay. Then next point, students, you can understand here Muslim and Hindu means make division between them. That was the motive of British people, but they became unsuccessful. उनको क्या करने का था? उनको डिवीजन करने की थी मुस्लिम और हिंदू हिंदू में, मगर वो अनसक्सेसफुल हो गए, उनको उसमें कुछ यश नहीं मिला। अब क्या होने वाला था? इधर एक लीग स्थापन होने वाली थी। लीग का नाम था मुस्लिम लीग। The British became very disturbed looking at the overwhelming response to the Indian National Congress in the anti-partition movement. जो ब्रिटिश लोग थे वो बहुत ऐसे परेशान हो गए थे कि ये जो नेशनल कांग्रेस है, ये जो पार्टीशन कर रहा है, ये जो मतलब सहभाग ले रहा है इस पार्टीशन मूवमेंट में, उसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। द ब्रिटिश वन्स अगेन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड अँड रूल अँड ब्रिटिश लोकांनी काय चालू केलं? पुन्हा एकदा ती पॉलिसी चालू केली। पुन्हा फिर एक बार उन्होंने विभाजन करना और राज्य करना ऐसा सूत्र, ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए शुरुआत की। They started using the propaganda. Meaning of propaganda, that is the publicity, मतलब प्रचार करना, that for safeguarding means keep safe, meaning of safeguarding सुरक्षित रखना, the interest of Muslim मतलब मुस्लिम पीपल को, मुस्लिम लोगों को सुरक्षित रखना, उनको संरक्षण देना। They should have a separate political organization. ये ब्रिटिश लोगों का थॉट था। हमारे मुस्लिम नहीं सोच रहे थे उसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और कुछ सोसाइटी चाहिए, कुछ संस्था चाहिए, ऐसा ब्रिटिश लोगों के कारण हमारे मुस्लिम लोगों ने सोचा था। मतलब वो खुद ने नहीं सोचा था। ड्यू टू मोटिवेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दिया? उनको मोटिवेशन दिया, एक प्रेरणा दी कि आप क्या कर सकते हैं, आप आपकी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। आप क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम कर रहे हो? हिंदू लोग आपको क्या उधर मतलब एडजस्ट नहीं कर रहे? तो ऐसा उनमें क्या क्या उन्होंने स्प्रेड किया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग स्प्रेड किया ब्रिटिश लोगों ने। मतलब हमारे लोगों में उन्होंने विभाजन करने का प्रयास किया था उधर। British government, due to the motivation of the British government, a committee of upper class Muslims under the leadership of Aga Khan. Aga Khan is the personality who was the leader of Muslim people. And that time, he under his leadership, that committee was working and made Governor General Lord Minto. Due to motivation from Lord Minto also supported that particular organization. लॉर्ड मिंटो ने भी सहकार्य किया। उसको मालूम था कि हम अगर इनको सहकार्य करेंगे तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट होगी और हिंदू एंड मुस्लिम में क्या पड़ेगी, ऐसा विभाजन होगा और उनमें एक तरह की मतलब एक तरह की फूट निर्माण होगी। एंड द अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स आल्सो गिव सपोर्ट। द मुस्लिम लीग established in the year of 1906, but actually it was the starting point of the division of Hindu and Muslim. So students, British were responsible for this particular league. British are responsible. British were responsible, we can tell, for this particular means division also. Now division also, British were responsible in that particular time. Means they did that. That's why it happened. Another one movement happened that is called Morley-Minto Act. That was one act. That was one law. There was dissatisfaction, there was unhappiness among the Indian people, among the Indians regarding the work of which government? The work of British government. The Indians felt that the reason of poverty in India was economic policy. Because of whose economic policy? Because of British economic policy. They are collecting the tax. They are collecting the tax in cash only. Means you learned before this also about the land revenue system. Oppressive policy of Lord Curzon regarding with that Bengal province, that also is learned here. Exclusion of educated Indians in government services. Exclusion means not taking, not participating, not including. Means opposite of inclusion. Exclusion means हमारे इंडियंस एजुकेटेड जो इंडियंस है, जो शिक्षित है, जिन्होंने शिक्षा ली है, जिन्होंने अच्छा शिक्षा लिया है, उनको भी गवर्नमेंट सर्विसेज में कुछ चांस नहीं है।
ऐसा हमारे इंडियंस के साथ बर्ताव है ब्रिटिश लोगों का। अनजस्ट बिहेवियर टुवर्ड्स इंडियन इन अफ्रीका, जो इंडियंस हमारे जो भारतीय लोग हमारे जो भारतीय लोग हैं जो अफ्रीका में रहते हैं उनके साथ जो अनजस्ट बिहेवियर है, अच्छा बर्ताव नहीं है। All this added to dissatisfaction of the Indian people as a temporary remedy. Temporary means for that particular time. For that meantime, one remedy, one solution was there. Solution on the discontent among Indians. Means one solution they did. ब्रिटिश पीपल ने कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया। कुछ तो सॉल्यूशन अब निकालना पड़ेगा। इनको मतलब शांत करना चाहिए। इनको ऐसा शांत करने के लिए कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कुछ तो मतलब समस्या का निराकरण करना पड़ेगा। इसलिए क्या किया, मोरले मिंटो रिफॉर्म एक्ट चालू किया, वो स्टार्ट किया। वो जो आया वो 1909 में आया, 1909 में आया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या था इस एक्ट में, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ यू नो दैट विधानसभा लोकसभा इज देयर। दिस कंसेप्ट ऑल्सो स्टार्टेड बाय ब्रिटिश ओनली। जो उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो उस समय मंत्री लोगों की काउंसिल थी, उनमें क्या किया, इंडियन लोगों का नंबर बढ़ाया, इंडियन लोगों की संख्या बढ़ाई, क्योंकि इंडियन लोगों को अच्छा लगे, भारतीय लोगों को अच्छा लगे। एंड प्रोविजन मेड देयर इंक्लूजन मीन्स इट इज अपोजिट वर्ड ऑफ एक्सक्लूजन। Inclusion means including of some elected Indian representatives in legislative assembly was made. In the same act, separate electorate means election group, voters group also were provided to the Indian Muslim. मतलब इंडियन मुस्लिम को क्या दिया, ऐसा अलग से एक वोटर्स ग्रुप दिया, मतदारों का जो ग्रुप होता है, जो गट होता है, वो दिया। ड्यू टू दिस कंस्पायरेसी, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सीक्रेट प्लान, कंस्पायरेसी मीन सीक्रेट प्लान of the British, the seeds of division actually इथं खरं तर काय झालं होतं, हे मतलब इधर क्या हो गया था, मुस्लिम मुस्लिम के लिए अलग सा वोटर ग्रुप दिया, अलग सा मतदार संघ दिया। तो एक्चुअली इधर जो मोटिव था ब्रिटिश लोगों का वो डिवीजन का था। डिवीजन को जो सीड बोए गए ब्रिटिश के माध्यम से, वो इस समय ही बोए गए, और इस समय से ही हमारा डिवीजन चालू हो गया हिंदू एंड मुस्लिम में, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश। Another one pact happened. The name of that pact is Lucknow Pact. This is the pact. Actually, one session happened of that Indian National Congress, which is the organization. This particular session happened, and this session happened in the year of 1916. And that time, leader of this session was Lokman Tilak. An attempt was made to resolve that dispute, to resolve that problem in the Indian National Congress. In the same year, there was an agreement. There was one agreement. एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, करार होता है, एक नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में कोई नियम तैयार हो गए एज द लखनऊ पैक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड टू सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स एंड मुस्लिम लीग एग्रीड टू सपोर्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स वर्क फॉर गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स टू इंडिया। सो व्हाट हैपेंड हियर, in this particular pact, in this particular act, in this particular agreement. Students, pact, meaning of pact, agreement. करार जे असतात, करार जे आपले छत्रपती शिवाजी महाराज वगैरे करार केलेले होते, त्यांनी मिर्झा राजे जयसिंगासोबत वगैरे जे करार केले होते। करार म्हणजे काय की ऍडजस्टमेंट केली जाते, एक प्रकारचं ऍडजस्टमेंट करतात। दॅट इज मतलब क्या करना, एडजस्टमेंट करना मतलब विदाउट फाइटिंग, कुछ झगड़ा नहीं करने का, झगड़ा की जगह क्या करने का, कुछ एडजस्टमेंट करने का। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड टू सेपरेट द इलेक्टोरेट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हो गया, तैयार हो गई कि जो सेपरेट और जो अलग से मुस्लिम लोगों को जो इलेक्टोरेट चाहिए, इलेक्टोरेट मतलब वोटर्स ग्रुप चाहिए, मतदार संघ जे मराठीमध्ये त्याला म्हटलं जातं मतदार संघ, तो द्यायला तयार झाले। आणि मुस्लिम लीगनं काय करायचे, मुस्लिम लीग एग्रीड, मुस्लिम लीग भी सहमत हो गया किसके लिए, तो सपोर्ट करने के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के काम में क्या करने के लिए, जो पॉलिटिकल राइट है, जो राजकीय अधिकार है, वो मिलाने के लिए मुस्लिम लीग ने ऐसा मान्य किया कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, टोटली वी कंप्लीटेड the second part also here. Only third part remained, that is the third part. In the third part, 3 points remained. Home rule movement, First World War. Home rule movement we have to learn, that is the very important moment, Dr. Annie Besant and Lokman Tilak's movement.
Also, World War and India. First World War happened there. British people were means participating in this war, and consequently because of British, मतलब ब्रिटिश लोग पार्टिसिपेट हो गए थे, इसलिए हमें भी होना पड़ा. एक्चुअली हमारे हमारे कुछ मालूम नहीं था, हमारा हमारा कुछ भी उधर काम नहीं था, मगर ब्रिटिश लोगों की वजह से हमारी हमारी जो सैन्य दल था, हमारा जो सैन्य दल था, अपने जो सैनिकों थे, उनको भी जाना पड़ा. देन वी हैव टू लर्न मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट. तो ये तीन जो पॉइंट्स है, वी हैव टू लर्न दैट, हमको ये पढ़ना है आगे के लेक्चर में. तो मैं अभी आपको होमवर्क देता हूँ, वो जो 3 पॉइंट है, जो रिमेनिंग 3 पॉइंट्स है, आपको रीड करना है, आपको उसकी मतलब पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है. और अ, पढ़ाई मतलब क्या, सिर्फ रीड नहीं करने का, उसमें से नोट्स निकालना है, जैसे मैंने पहले बार भी बताई थी, ऐसे नोट्स निकालना है. और जो कठिन शब्द है, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, उनके मीनिंग आपके नोटबुक में आपको लिखना है. आपल्याला शब्दार्थ लिहायचा आहे वहीमध्ये मराठीवाल्यांसाठी सांगतोय, ज्यांना हिंदी नाही समजणार त्यांच्यासाठी मराठीमध्ये सांगतोय. आणि त्याचबरोबर नोट्स काढायचे, महत्वाचे जे पॉइंट्स आहेत ते लिहून काढायचे. दॅट इज द होमवर्क. हा, प्रोपॅगेंडा मीन्स पब्लिसिटी. गव्हर्नर मीन्स दॅट इज द मेन पर्सन ऑफ दॅट कंट्री, मेन पर्सन ऑफ दॅट कंट्री. लाईक प्राईम मिनिस्टर इज नाव, like that. And conspiracy means secret plans, secret plans. Okay, can I stop here then? Hello. Okay. Then complete your work, everyone. Bye bye. Thank you everyone for attending the class.